Good morning, dear students. We are doing unit number 2, forms of business or organization, and currently our topic is partnership organization. And in previous lecture, we have already discussed meaning, concept, evaluation of partnership organization. And today we will discuss next topic, that is the types of partners. Okay, so there are different type of partners with different degree of responsibilities and liabilities. Okay, students. So there are generally two types of partners in partnership firm. Firstly, those partners who are directly related with the firm. They invest money in the firm and have a share in its profits and loss, and they are called full-fledged partners. Okay, and second type partners who do not have full interest in the business of the firm. They are associated with the firm because of some special motive. Okay, it is not essential for them to make any investment in the firm, and they don't aim at getting any share in the profit and loss. They are labeled as not full-fledged partners. Okay, so let's see full-fledged partners. First one is the active partner. So students, active partner means an active partner contributes capital, manages business activities and share profits, losses and business risk. Okay, so those partners who take active participation in the administration of the firm are called active partners. They invest money in the firm and have a share in its profits and loss, and they have unlimited liabilities. So these partners act as an agent of the firm, right? And an active partner carries business activities on behalf of other partner and is bound by activities of other partners as well. So they are also known as general or ordinary partner, right? So second one is the sleeping or dormant partner. Sleeping partner contributes capital and share profits, losses, and business risk. Okay, and sleeping partner has unlimited liability also. And sleeping partner does not take part in the day-to-day activities of the business. मतलब वो participate नहीं करते हैं. And a sleeping partner may not contribute in business decision making, but is bound by act of the all other partners. जो partners बाकी कर रहे हैं, उनके लिए वो responsible रहेगा उनके act के लिए. But वो जो एक एक्टिवनेस है, जो एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ओके, थर्ड इज द सीक्रेट पार्टनर. Secret partner is associated with the business, but outsiders have no knowledge about his status in the business. बाहर के लोगों को इसके बारे में नहीं पता. So a secret partner contributes capital, manages business activities, and share profits, losses, and business risk. A secret partner has unlimited liabilities in business also. Okay, and a secret partner carries business activities on behalf of other partners and is bound by activities of other partners as well. जो भी बाकी लोग partners कर रहे हैं उसके लिए भी वो responsible रहेगा. Okay, but secret partners जो है वो सिर्फ show नहीं होगा लोगों को, status में show नहीं होगा. Okay, a partner is known as a secret partner whose relation with the firm unknown to the general public. Okay, he has all the features like the rest of the partners. जो बाकी partners के features हैं वो सभी इस पे भी apply होंगे. So he invests capital, shares its profit and loss, takes part in the management and unlimited liabilities. Okay. Next, not full-fledged partner, which first one is the nominal partner. Nominal partner is actually not a partner, but allows the firm to project him as a business partner. Those partner who neither invest money, जिसने पैसा भी invest नहीं किया, nor have a share in the profit and loss, and also have no role in the administration of the firm, are called nominal partner. सिर्फ एक नाम मात्र partner होना. Okay, so the firm makes them partner to gain from their personal goodwill. ये सिर्फ उसकी गुडविल की वजह से उसका नाम जो है अपने फर्म के साथ जोड़ा गया है. So though the have no direct relation with the firm, yet they are answerable to other parties as the other active partners are. यहाँ पर जो main question है, that is the
why a person accept such a type of partnership without having any benefit? So it is because he has special attachment with the firm. अटैचमेंट हो सकती है, वो उसका कोई रिलेटिव हो सकता है, इसलिए भी उसको अपना नाम उसको देना पड़ रहा है, ठीक है, अदरवाइज उसका कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, राइट. सो अ नॉमिनल पार्टनर हैज आल्सो अनलिमिटेड लायबिलिटी इन द बिजनेस, बिकॉज वो लोगों की नजर में वहाँ का पार्टनर है, और कोई भी पर्सन अगर उनके साथ डील कर रहा है उसके बिहाफ उसकी फेस वैल्यू से, तो इट मींस ही इज द रिस्पॉन्सिबल for that person. Okay, a nominal partner does not manage business activities but is bound by act of all other partners. वो खुद तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन बाकी लोग जो भी कर रहे हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा. For example, a father becomes partner only because his son is running the business. अगर उसका बेटा काम कर रहा है तो उसके फादर की अगर अच्छी गुडविल है, लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हालांकि उसने कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, उसका प्रॉफिट और लॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल अपना नाम देने के लिए उसने अपने बेटे को एज ए पार्टनर शो किया है, राइट. नेक्स्ट, पार्टनर एज एस्टोपल और होल्डिंग आउट. Estoppel or holding out means a partner by estoppel or by holding out is and that partner who is not a partner, but through his behavior, conduct or initiation lets outsider believe that he is the partner in the business. जो उसका बिहेवियर है, वो जो कंडक्शन है, जो इनिशिएट ले रहा है, वो लोगों की नजर में वो ऐसा बना हुआ है कि वो वहां का एक पार्टनर ही है. ओके, और पार्टनर जो स्टॉपल है या फिर होल्डिंग आउट है, स्टॉपल एज अनलिमिटेड लायबिलिटी, इनकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी ही रहेगी फॉर रिपेमेंट ऑफ डेब्ट, क्योंकि वो लोगों की नजर में एज ए पार्टनर है. ओके, और सेम होल्डिंग आउट है अगर, तब भी वो अनलिमिटेड लायबिलिटी ही रहेगी. सो पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट does not contribute capital or share business profit or and loss, right. And in the absence of Daniel, he is considered as a partner, is held responsible for his act. Okay, a partner by stopper does not participate in business activity, वो participate नहीं करेगा इसमें. So a person who has no partnership in the firm, his words or conduct highlights him as a partner. उसकी बातों से लगता है, उसकी wording से लगता है कि वो वहाँ का पार्टनर है, वो अपने आप को शो करता है कि वो वहाँ का पार्टनर है. ओके, नेक्स्ट इज द लिमिटेड पार्टनर. लिमिटेड पार्टनर मीन्स अ पर्सन whose liability is limited to his investment in the business. That is called limited partner. इस पर्सन की क्या है, जो उसने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, बस वो वहीं तक ही लिमिटेड पार्टनर बनना चाहता है. ठीक है. So, in other words, if the firm faces any loss, then he is liable only to the extent to of his invested money. अगर कभी भी बिजनेस में लॉस होता है तो जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया हुआ है सिर्फ वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मतलब उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं वो सेफ हैं. सो ही हैज नो राइट टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म. उसको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई राइट नहीं है कुछ भी पार्टिसिपेट करने का. सो सच ए पार्टनरशिप मस्ट हैव एट लीस्ट वन पार्टनर हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी. अगर इस तरह की कोई पार्टनरशिप चल रही है तो उसमें कम से कम एक पर्सन अनलिमिटेड लायबिलिटीज के लिए होना जरूरी है. मींस लिमिटेड पार्टनर्स, बाकी पार्टनर लिमिटेड हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन पार्टनर शुड बी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी. ओके, नेक्स्ट, माइनर पार्टनर. Minor partner means any person lacking the capacity of contract cannot become a partner. एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि एक माइनर पर्सन जो है वो पार्टनर बन सकता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ माइनर कैन नॉट बी पार्टनर, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ माइनर कैन बी पार्टनर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ओनली. एक माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट्स की केस में बन सकता है इफ ऑल द पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट. अगर सबका कंसेंट हो जाए तो माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है. ठीक है, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट माइनर हैज नो शेयर इन द लॉस. यहाँ पर माइनर को कभी भी लॉस नहीं दिया जाएगा फॉर्म में, एंड ही हैज लिमिटेड लायबिलिटी. उसकी लायबिलिटी भी जो है वो भी लिमिटेड ही रहेगी. मींस जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उससे ज्यादा का वो कभी भी पे नहीं करेगा, चाहे फर्म जो है वो कितने भी लॉसेस में चली जाए. नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली.
Yes, this is the type of partners. This such a type of partner is different from the minor partner. He only shares the profit of the firm. ये person सिर्फ profits के लिए है, but he has unlimited liability like the other partners. ऐसा है कि अगर business कभी बहुत ज़्यादा losses में आ जाता है, debt उसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या business आप जब उसकी क्लोजिंग करते हैं उस टाइम पे वो डेप्ट में आ जाते हैं, उसकी जो डेप्ट पूरे करने के लिए बिजनेस के पास सफिशिएंट जो है वो फाइनेंस नहीं है, तो उस केस में वो पार्टनर जो है उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, तो सच पार्टनर हैज नो राइट टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। ये एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट ही हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, और अदरवाइज ये सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही यहाँ पर पार्टनर है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज minor as a partner. First of all, what do you mean by minor? It refers to a person less than the age of 18. Okay, that is called minor person. So a person less than the age of 18 comes under the category of minor. So the main feature of minor is that he lacks the capacity to enter into the contract. So in other words, contract signed with the minor is completely void. It means अगर कभी माइनर ने कुछ भी साइन कर भी दिया है ना, तो वो void है. It means if a minor refuses to fulfill the promise done to the other party, then that party cannot move to the court for the implementation of the contract. अगर उसने कोई साइन कर दिया और उसको फुलफिल नहीं किया, तो बाकी लोग जो हैं वो कोर्ट में नहीं जा सकते उसके अगेंस्ट. ओके, उनके पास कोई राइट नहीं है इसके लिए. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर माइनर कैन बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म. यस, व्हाट विल बी द राइट्स, हिज राइट्स एंड ड्यूटीज. तो अगर वो पार्टनर बन सकता है तो उसके राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं. सो पार्टनरशिप is established by a contract first of all, so thus only that person can become a partner who satisfies the prerequisites of the contract. Okay, so on that basis it can be concluded that a minor cannot be a partner, क्योंकि जो हमारे प्रोविजंस है उसमें ये मेंशन है कि माइनर जो है पार्टनर नहीं हो सकता. बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 of Indian Partnership Act 1932, a minor cannot be a partner, but he can be made a partner in the profits with the consent of all the other partners. वो तभी बन सकता है जब बाकी सब पार्टनर्स की कंसेंट है और वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही पार्टनर होगा. So in this way, minor can be partner but cannot be declared a full-fledged partner. तो वो full-fledged partner में declare नहीं हो सकता है. Okay? अब इसके राइट्स क्या रहेंगे और इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, राइट, वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेच्योरिटी. जब तक वो 18 तक का नहीं हो जाता, मींस जब तक वो माइनर है, 18 से कम की एज का है, देन उसकी क्या राइट्स रहेंगे और क्या उसकी ड्यूटीज रहेंगी. सो पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेच्योरिटी. फर्स्ट इज द राइट्स, उसका चेक करेंगे राइट्स ऑफ अ माइनर पार्टनर. तो फर्स्ट राइट इज राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स एंड एसेट्स. उसका जो राइट रहेगा वो एसेट्स और प्रॉफिट्स को शेयर करने का रहेगा. ओके, सो अ माइनर हैज द राइट टू गेट दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड एसेट्स व्हिच वाज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ हिज एंट्री एज अ पार्टनर. जब भी उसने पार्टनरशिप में एंटर किया था उस टाइम पे जो डिसाइड हुआ होगा, जो भी एसेट्स थी और जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उन पे उसका राइट है शेयर करने का. So it should be kept in mind that the minor partner has no relation with the loss of the firm. कभी भी वो losses को suffer नहीं करेगा. And second is the right to inspect the books of accounts. Yes, वो inspection कर सकता है अपनी books की कभी भी. A minor partner has the right to view, inspect and to get the copy of books of accounts of the firm. But a minor in no case has an access to the books which contain secrets of the firm. Okay. Third is the right to file suit. A minor partner can file a case against the firm for the payment of his share of the at the time of his quitting the partnership. अगर वो क्विट कर रहा है और उस टाइम पे अगर पेमेंट नहीं की जा रही फर्म के द्वारा, तो उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में केस कर सकता है. सो दिस राइट ऑफ फाइलिंग द केस इज नॉट अवेलेबल टू द माइनर व्हेन ही इज इन द पार्टनरशिप. हाँ, ये तब है जब वो उसको क्विट कर रहा है, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप में ही है तब वो इस राइट का यूज नहीं कर सकता. ओके, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. A minor partner's responsibility is limited only to the extent of his invested capital in the firm. जो पैसा उसने
बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, सिर्फ उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। वाइल अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, जबकि आपको पता है कि जितने बाकी पार्टनर्स हैं उन सबकी लायबिलिटीज जो है वो अनलिमिटेड है। ओके, तो यहाँ जो माइनर पार्टनर है, इन केस ऑफ लॉसेस ही विल गिव ओनली दैट शेयर जो कि उसने इन्वेस्ट किया है जिसमें बिजनेस में, उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। इससे ज्यादा उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज जो है वो सब सेफ हैं। ओके ओके, नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर ऑन अटेनिंग मेच्योरिटी। मान लो बिजनेस करते करते उसकी एज जो है वो 18 प्लस हो जाती है, तो देन ही विल बी मेजर। ओके, तो अब वो माइनर नहीं है, वो मेजर हो जाएगा, मेजोरिटी में आ जाएगा। सो अब उसके जो राइट्स हैं और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। ओके, so the public notice regarding the minor's willingness to remain a partner or not is to be served by him. So this notice is to be produced within 6 months of his attaining maturity. Okay, ये देना पड़ेगा कि उसकी willingness है, तो he will be considered as full-fledged partner in the absence of such a public notice. अगर वो कोई नोटिस नहीं भी देता है तब भी वो, मतलब जैसे ही 18 प्लस का हो जाएगा तो वो एज ए फुल फ्लेज्ड पार्टनर हो जाएगा बिजनेस में। So his position in the firm is determined on the very basis of the notice. So the position of a minor after attaining majority can be divided into two categories. First is when he elects to remain a partner. Second, when he elects not to remain a partner. So when he elects to remain a partner, in this case, जो उसकी liabilities होंगी वो unlimited हो जाएंगी, and he will also get a share in the losses along with the profits. पहले वो सिर्फ profits को enjoy कर रहा था, अब वो losses में भी participate करेगा, और he will be responsible for the acts of the firm made during the tenure of minority with retrospective effect. वो उन सब एक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी उसके पहले उसके मिनोरिटी के टाइम पे, जो टाइमिंग पे जो भी डिसीजंस लिए गए उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। देन ही इलेक्ट्स नॉट टू रिमेन अ पार्टनर, तो अगर वो आगे नहीं, उसको पार्टनर नहीं रहना चाहता है, देन इन दिस केस हिज राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी माइनर टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। तो उसकी जो थी उस नोटिस तक, ठीक है, एंड ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस देने के बाद अब जो भी बिजनेस में हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, and he has the right to file a suit against other partners for demanding a share of the assets and profits. अभी वो क्या कर सकता है कि राइट कोर्ट केस कर सकता है अपने राइट के लिए कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स और जो एसेट्स हैं जो उसका शेयर अगर बिजनेस में जो है उसको लेने के लिए। अदरवाइज अगर वो उसको अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो ये उस केस में है। ओके, now the next heading is the partnership deed. Yes students, a partnership deed refers to an agreement which specifies the terms and conditions that govern the partnership. जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे आप तो उसमें जो भी, अगर ये रिटर्न एग्रीमेंट है आपका, तो जो कंडीशंस, जो टर्म्स जो आप भी आपस में जो भी पार्टनर्स की होती है वो सब इसमें मेंशन की जाएंगी। दिस इज द एग्रीमेंट। So partnership is based on agreement, and the agreement can be oral or written, but an oral agreement can be subject to misinterpretation. उसमें क्या हो जाता है, मिसइंटरप्रिटेशन, उसमें मिसइंटरप्रिटेशन होगा बिकॉज जो एक बार आप बोलते हो उसके बाद कोई भी पर्सन जो है वो उसके लिए एग्री नहीं होगा कि यस मैंने ऐसे नहीं बोला, तो मिसइंटरप्रिटेशन हो जाता है, एंड द रिजल्ट इज क्या होगा के लिए डिसएग्रीमेंट्स अमंग द पार्टनर्स। आपस में डिसएग्री हो जाते हैं वो लोग, कोई भी फाइट हो सकती है, कुछ भी किसी भी चीज में आके वो लोग उनके क्लैशेस हो गए, तो उस केस में जो ओरल एग्रीमेंट है वो थोड़ा सा जो कह सकते हैं आप लॉन्ग टाइम के लिए पार्टनरशिप को अगर चलाना है तो ओरल एग्रीमेंट इज नॉट suitable. So the agreement is therefore put in writing to avoid disagreement or disputes among the partners. So this written agreement is called a partnership deed. अगर written में है partnership agreement, then it is called partnership deed or article of partnership. Okay. So all the relevant conditions can be included in the partnership deed. जो भी इनकी conditions थी, जो भी इनके terms हैं,
जो भी सिचुएशन, जो भी कंडीशंस ये रखेंगे वो सब इसमें रिटर्न में मेंशन होती है। ओके, अब इसमें हम क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। ओके, मींस इट शुड नॉट बी सिमिलर टू दैट ऑफ द अदर फर्म। किसी और से मिलता जुलता या कंफ्यूजिंग सा नेम नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सच दैट इट implies the sanction or patronage of the government and it's likely to mislead the public। जैसे कि क्राउन, इंपीरियल, स्टेट, किंग, ये कुछ ना, ये वर्ड्स जो हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, इन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मिसलीड करते हैं, ये पब्लिकली यानी कि गवर्नमेंट के साथ ये जो वर्ड्स हैं बाउंड है। सो दैट्स व्हाई इन वर्ड्स को वो यूज नहीं कर सकते वो फर्म के नेम के लिए। ओके, सेकंड इज द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। सेकंड इसमें जो मेंशन होगा, फुल नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स should also be mentioned in the partnership deed। then duration of the partnership, कितने टाइम के लिए, अगर ये स्पेसिफिक पहले ही पता है टाइम पीरियड तो वो मेंशन करेंगे। ओके, duration should be clearly mentioned in the partnership deed। next, nature and scope of the firm's business। partnership deed must specify the nature and scope of the firm business, whether its field of activity will be local, national or international। किस टाइप, किस मतलब किस लेवल का बिजनेस आप कर रहे हो। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ऑफ बाय द पार्टनर्स, कितना कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, ये इस पे आप मेंशन करेंगे। ना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, दैट रेशियो जिसमें कि वो लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिवाइड करेंगे। सो इट इज ऑलवेज नेसेसरी दैट द शेयर ऑफ पार्टनर्स इन द प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ द फर्म इज प्रोपोर्शनेट टू देयर capital। It might depend on the partner's skill, experience, etc. Okay, next is the commission and salary of partners। if any person is active and any other is a sleeping partner, so active partner will get salary or commission। तो उस केस में वो मेंशन यहाँ आपको करना है। loans to and by partners is the deed should also clarify whether the firm can give or take loans from the partners and what will be the rate of interest on such loans। पार्टनर से लेना और पार्टनर से देना दोनों चीजें होंगी लोन के लिए। ओके, और वो किस रेट पे होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर आपको मेंशन करना है। देन द ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट। ड्राइंग्स मींस जो भी पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पर्सन पार्टनर जो है वो विड्रॉ करता है मनी फ्रॉम द फर्म फॉर देयर पर्सनल रिक्वायरमेंट, सो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। और अगर वो पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसके ऊपर उसका क्या इंटरेस्ट पेबल होगा, उसको क्या करना है पे। ओके, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मेंशन होगा। ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द पार्टनरशिप डीड शुड क्लियरली स्टेट the mode of keeping the firm's book of accounts and way the final accounts are to be prepared। the method of auditing the books and who will be the auditors also need to be specified in the deed। ऑडिटिंग होता है चेकिंग कराना अपने अकाउंट्स की, ठीक है, तो ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन करना है। फर्स्ट ये भी मेंशन होगा कि कौन ऑडिट करेगा और पर्सन का नेम और कौन से मेथड से इसको ऑडिट कराया जाएगा। नेक्स्ट 11th पॉइंट इज द राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। So every partner has the right to participate in the conduct of the firm's business, but the partners can come to any agreement about their rights, duties and liabilities। उसके अंडर उनके क्या राइट्स रहेंगे, क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या लायबिलिटीज रहेंगी, वो सब मेंशन है करना है यहाँ पर। पार्टनरशिप डीड शुड डिफाइन द लिमिट्स ऑफ द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। अगर कुछ लिमिट्स हैं तो वो भी यहाँ पर मेंशन की जाएंगी। देन एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। स्टूडेंट्स जब नया पार्टनर कोई एडमिट होगा तो उसके लिए जरूरी है सबका कंसेंट होना, या फिर पहले से कहीं प्रोविजन इसमें बना के ये रखते हैं। द एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ। इफ देयर इज एनी स्पेशल प्रोविजन एग्रीड टू अमंग द पार्टनर्स, इट शुड क्लियरली बी स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर जो भी प्रोविजन ये इसको अप्लाई करेंगे वो इसमें मेंशन क्लियरली होना जरूरी है। देन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, द पार्टनरशिप डीड शुड स्पेसिफाई द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द गुडविल ऑफ द फर्म। Such evaluation becomes important when a new partner enters the firm or an existing partner retires or separates। Actually, goodwill क्या होती है, reputation होती है। उस reputation की वजह से जो business का जो value बढ़ती है, cost बढ़ती है, that is called goodwill। Okay, तो वो goodwill की calculate करने के लिए we have some methods। तो अब उनमें से हम कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये मेंशन करना है आपको। ओके, और उसकी वैल्यू की जरूरत हमें कब नीड होती है इसकी, जब कोई पर्सन रेशो चेंज करता है अपनी,
या फिर रिटायर हो रहा है, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ओके, या किसी की डेथ हो रही है, तो उस केस में हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना होता है. नेक्स्ट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. So the deed should specifically state the circumstances under which the firm can be dissolved. तो यहाँ पर वो बिल्कुल स्पेसिफिकली सर्कमस्टांसेस यहाँ मेंशन करने हैं जिसमें ये पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है. ओके, एंड ऑफ द पार्टनरशिप. नेक्स्ट इज द डेथ ऑफ पार्टनर एंड इज सक्सेशन. अगर सपोज किसी पर्सन की डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो उस केस में उसके साथ मतलब जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन होगा, यानी कि इसका जो नॉमिनी है. If the investment is to be kept in the firm and the successor of the deceased partners is to be admitted as a partner, जो उसका सक्सेसर या उसका जो नॉमिनी है वो एज ए पार्टनर ऐड हो जाएगा, या इट शुड बी क्लियरली मेंशन, ये होना चाहिए जरूरी इसमें मेंशन. द कैपिटल ऑफ द डिसीज पार्टनर इज टू बी पेड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव इन द इंस्टॉलमेंट्स. तो ये भी मेंशन होगा कि जो भी उसका शेयर बनता है ना, जिसकी डेथ हो गई है, अब उसका जो भी पार्टनर का जो भी शेयर फर्म में है, अगर वो पार्टनर आगे उसको आगे जो उसका सक्सेसर है वो एज ए पार्टनर इसमें एडमिट नहीं होना चाह रहा है, तो उससे पेमेंट लेना चाहता है सिर्फ फर्म से, तो उस केस में वो पेमेंट जो है वो एज ए होल इकट्ठा दिया जाएगा या फिर एज ए इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में दिया जाएगा. ये सब इसमें मेंशन होगा. अगर इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा तो वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, तो ये सब इसमें मेंशन आपको करना है. देन द वायलेशन ऑफ द पार्टनरशिप रूल. अगर रूल्स को कोई ब्रेक करता है तो उस केस में इफ द पार्टनरशिप वायलेट्स the partnership rule, the steps to be taken against the existing partner should be defined in the partnership deed. क्या उसके अगेंस्ट एक्शन लेने हैं वो भी इसमें मेंशन किए जाएंगे. ठीक है. arbitration clause, ये the partnership deed must specifically state if the future disagreements or dispute amongst the partners will be subject or to arbitration. If it is agreed to be so, the deed need also to specify how the arbitrator will be appointed and what will be the prescribed. अगर इनके बीच में कुछ भी डिस्प्यूट हो जाते हैं तो कौन पर्सन जो है वो इस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेटर जो है वो कैसे, ये क्लोज इसमें मेंशन किया जाएगा कि कौन उनके डिस्प्यूट को जो है वो सॉल्व करेगा. ठीक है, सॉर्ट आउट करेगा. और द आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड एंड what will be his right. Okay, students, so these points are not mandatory and comprehensive for all the deed of the partnership. जरूरी नहीं सारे points आपको लेने हैं. Depending on upon the circumstances and nature of the business, the partners may agree to incorporate such other terms and conditions which they feel are appropriate in the circumstances. जो भी उनको उनके अकॉर्डिंगली सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो कंपल्सरी है वो उसमें वो मेंशन कर सकते हैं. Okay, so students, enough for today. So students, revise and write this topic in your notebook. Thank you, students. Have a nice day. Yes, students, have you any queries?
Yes, dear students, if you have any queries, now you can ask. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, meaning of unlimited liabilities. Yes, beta. Unlimited liabilities means if a firm suffer losses, suppose, and पार्टनर्स जो है उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं वो भी उनको सेल किया जा सकता है अगर वो बिजनेस की प्रॉपर्टीज कम पड़ जाती हैं उनको पे करने के लिए क्रेडिटर्स को तो पर्सनल प्रॉपर्टीज भी सेल हो जाएंगी दैट्स मीन देयर लायबिलिटीज इज अनलिमिटेड लिमिटेड होता है कि जितना बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया अगर तो उतने तक के लिए ही आप लिमिटेड है मैं जैसे कंपनी में आप जितना शेयर आप इन्वेस्ट करते हो कंपनी में आपने कोई शेयर परचेज किया तो आप उस तब तक वहां तक के लिए लिमिटेड हो तो आपका जो अगर सपोज कंपनी लॉसेस में जाती है तो आपका शेयर ही जाएगा ज्यादा से ज्यादा जितना आपने इन्वेस्ट किया है बट आपके पर्सनल प्रॉपर्टीज जो है वो सेफ है लेकिन पार्टनरशिप और सोल ट्रेड के केस में ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है अगर पर्सन जो है अपनी लायबिलिटीज पूरी नहीं कर पाते हैं अपना पेमेंट पूरा नहीं कर पाते बाहर के आउटसाइडर्स को तो उनके पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी सेल किया जा सकता है Okay, ma'am. Okay. Yes, any other queries? Okay, students, done. You can leave.